हिंसा हुई जिसमें लोगों की मौत हुई, उसके बाद से नेपाली समुदाय में एक बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। जनजी आंदोलन अब एक बड़ा रूप ले रहा है। मैं आपको तस्वीरें में दिखाता हूँ। जो पार्लियामेंट है उसके ठीक बाहर यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे। सुबह ये प्रदर्शनकारी जो इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं संसद भवन के ठीक बाहर थे, लेकिन फिर और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रदर्शनकारियों को ठेला गया है। 8:30 बजे सुबह से काठमांडू में एक बार फिर से प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि ओली सरकार को वापस जाना होगा, गद्दी छोड़ना होगा। और धीरे धीरे देखिए कैसे संसद भवन के सामने वाली सड़क को पुलिस अपने कब्जे में ले रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग बनी हुई है कि ओली सरकार को जाना होगा और युवाओं के हाथ में नेतृत्व देना होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अब सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं है, बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म के बारे में है। I'm going to go straight across to Lakshmi Pant, journalist from Kathmandu, joining in at this point in time. Thank you for connecting with us. I want to begin by asking you, what is the current situation like at this point in time? Have things eased out even a little, or there are areas that continues to be very, very tense? Well, thank you. Situation is actually escalated with the protest continuing the second day. The authorities has imposed curfew, but it is almost, protesters are defying it. And there are reports that over 20 civilians have been killed so far, with 400 plus civilians injured. Around 50 to 60 civilians are actually, missing. I'm just going to come back to you in a second from now, Lakshmi Pant. Please be with us to tell our viewers that we have an update. In the Nepal Prime Minister KP Sharma Oli has called for an all-party meeting today is what we are learning. This is the information that we have with us at this point in time to tell our viewers the Prime Minister convening an urgent meeting. Lakshmi Pant, I'd like to come back to you on the figures that you were giving us as far as the death toll here is concerned. If you have any confirmed figures that you can share with us again. 20 civilians killed so far, 400 plus injured, around 40 to 50 are missing actually, and as you rightly pointed out, Prime Minister called for the all-party meeting, but it is likely to be, defied by major political parties. As of now, 21 members of the fourth largest party in the federal parliament, Rashtriya Swatantra Party, their chairperson has directed them to resign immediately. That is the situation, and and the administration has imposed curfew from early morning, but public are defying it. Majority of the homes and households of ministers, including that of the opposition leader Prachanda, and some properties belonging to Prime Minister, Prime Minister's house actually, and foreign ministers' school called one school in Balwachar has been destroyed by protesters. Also in this Bhaisepati area where I actually reside, it is known as the minister's residence. As of now, protesters attacked the home of the minister for finance minister, and so people are defying it. And this is the second day. The clear demands are, to bring an end to the, corruption. Social media ban is just a context. It started with that. The Gen Z, the youngsters are demanding to, calling an end to the corruption. And also the demands are pretty much clear from the other sections of society as well. A demand for civic government rather than all party governments, and also an early election as well. So this is the update. Also out of Kathmandu Valley, several major cities have seen from the early morning escalating protest by not only by the youngsters and Gen Z group, but their guardians and several sectors of the societies. This morning in Kathmandu, the former Chief Justice joined the protest in Kathmandu as well.
Okay, that's important that you tell us that the former Chief Justice joined the protest in Kathmandu as well. So this is simmering against the administration. Be with us. Lakshmi, I'm going to come back to you. India keeping a close watch on the Himalayan unrest is what we are learning. India's call for restraint and peaceful dialogue. The Ministry of External Affairs has said already that Indian nationals residing in Nepal are advised to take caution. Our citizens live in Nepal as well and adhere to safety norms by the authorities. Remember, this is a neighboring country, a shared cultural heritage as well. Right now, this is the information that we have with us. Also to add, to tell our viewers that the Prime Minister KP Sharma Oli has called for an all-party meeting is what is now being said. Let's listen to what to this report that has been sent in by Rohit Singh. इस पूरे बीरगंज में कर्फ्यू लगाया गया था कल रात 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक, लेकिन आज सुबह 9 बजे जब एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया, उसके बाद कर्फ्यू के समय को जो है और आगे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। और देख लीजिए किस तरीके से हालात इस वक्त नेपाल में बने हुए हैं, जहां पर चारों तरफ आपको लग रहा होगा कि पूरा नेपाल जो है सुलग रहा है, क्योंकि और उनकी जो मांग दरअसल ये है, वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन की मांग। एकदम भाग रहा है दुबई तैयार। यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, देख सके राजीव, मेरे साथ एक शख्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्थानीय लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा उमेश चंद्र गुप्ता नाम हुआ सर। ये बताइए किस वजह से आपको लग रहा है इतनी हिंसा 2 दिनों से हो रही है, क्या हो रहा है? यहाँ पर जो सरकार का करप्शन है, देखिए पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर रह कर एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस है। बहुत सारे लोग जो घायल हो रहे हैं उनको भी ले जाया जा रहा है। हाँ जी बताइए। यहाँ का सरकार का जो करप्शन है, यहाँ को युवा का कोई रोजगार नहीं है। यहाँ का नेता लोग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है, न व्यापारी को जीने देते हैं न युवा को जीने दे रहे हैं। ये सारे राजनेता जो बोल के बैठे हैं न तीन, ये सब साला सब चोर है। सब की भाषा का प्रयोग न करें, आपने आराम से बात कर बताएं। यहाँ नाराजगी है आपको? एकदम नाराजगी है सर, हमारा नाराजगी नहीं है, संपूर्ण युवाओं का नाराजगी है, सारे व्यापारियों का नाराजगी है, सारे के नाराजगी है। आप इधर आइए, आपका क्या नाम हुआ? आप नहीं बात करेंगे, आप इधर आइए। आप लोग और कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस बात को लेकर आप लोग की नाराजगी थी, जो आप रोड पर दिख रहा है, किस बात को लेकर नाराज हैं आप लोग? वही जो बताया अभी बताया नहीं। क्या सरकार से क्या नाराजगी आप लोग की, किस बात को लेकर? चलिए, बहुत सारे लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। जी आप बताइए। यहाँ का व्यवस्था खराब है, जनता के ऊपर कोई किस्म का यहाँ पर सिस्टम नहीं है कि उन लोग को सहयोग मिले, कोई व्यापार करे, बढ़िया ढंग से करे। सब उन लोग का करप्शन है, सब उन लोग का पूरी डकैती है। वो लोग अपने अपने पेट भरने के लिए यहाँ का नेता लोग का काम है। तो ये बताइए, अगर मौजूदा सरकार नहीं है तो फिर किसको चाहते हैं आप लोग? सरकार बनना चाहिए या क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर कोई सरकार आए, हाँ। जनता के हित में आए और जनता का कार्यक्रम करे। कौन सरकार आप लोग चाहते हैं? बैलेंस चाहते, कौन पार्टी के? नहीं चाहिए, राजतंत्र चाहिए, राजतंत्र चाहिए, राजतंत्र चाहिए। राजतंत्र चाहिए, जो पुराना राजतंत्र था, पुराना राजा है और सबको देखभाल करे और सबको जनता को सुख शांति रखे। तो पुराने राजा की बात हो रही है, राजा जो हिंदू राष्ट्र में होता था नेपाल, उस समय थे, राजतंत्र जो था कुछ साल पहले, उसकी मांग यहाँ पर मांग हो रही है। लेकिन आप देखिए कुछ और भी लोग हैं मौजूद। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम जानू शर्मा। ये बताइए किस बात को लेकर पूरा प्रदर्शन चल रहा है? आप लोग भी नए युवक हैं, क्या किस बात को लेकर आप लोग की नाराजगी है? ये तो एक सरकार जो होते हैं हम लोग के यहाँ के, मतलब वहाँ के बेटे लोग वहाँ बाहर जाके बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोग, वही कारण से हम लोग का ये जो प्रेसिडेंट है वो हम लोग सरकार के ऊपर उतारना चाहते हैं, पर पुलिस हम लोग का साथ नहीं दे रही है। नेताओं के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या करें? काम है, रोजगार है ये जीडीपी का डाउन है, तब पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी स्थिति नहीं है, उस हिसाब से उन लोग फेसबुक अभी बंद कर चुका है। उस हिसाब से जीडीपी मजबूत होता तो करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी ये बताइए, नाराजगी केवल फेसबुक और ये सब ट्विटर बंद करने से है या किस बात को लेकर? नाराजगी तो बहुत कुछ से आपको, ठीक है, हम लोग बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर नेता लोग समझ रहे हैं, उन लोग कुछ कर नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार बहुत है क्या? बहुत है नेपाल में। परिवारवाद भी है क्या? जाओगे आप कहीं भी जाओ, बिना कमीशन के काम नहीं होगा। कमीशन दोगे 1 घंटा में आपका 2 मिनट में काम फाइल रेडी हो जाएगा। कमीशन नहीं दोगे आपका 3 दिन के हफ्ता दिन भी काम नहीं होगा। ऐसा है यहाँ नेपाल में। क्या नाम बताया आपने? जानू शर्मा। जानू शर्मा। देखिए जेंजी के कह सकते हैं एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवा है और बता रहे हैं किस
इस तरीके से इनको नाराज़गी केवल सिर्फ सोशल मीडिया बंद करने से नहीं है, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनका कहना है, और जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनके बच्चों को शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं है, और इसको लेकर जो है नाराज़गी जो है साफ तौर पर 2 दिनों से नेपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है।